Good morning, class. Today I am discussing one chapter of Beehive. Okay, the fun they had. See, this can be, you can say, current condition of yours now, what is prevailing, and if with the last experience. I think both you have properly experienced very nicely your last experience and your current experience. If I would say, it's not wrong that in your last experience you have enjoyed a lot because you have been with your friends, with your teachers, and you have enjoyed your lot. And in this current time period, you are not with your friends, you are sitting at home. Okay, see, with the school environment is different, and with the home environment it is different. So here the fun they had in this, see, it is actually based on your future classes, how it will be. Okay, so it is one is with machinery teacher, okay, and one is your mechanical teacher, that means a simple person. So home classes you enjoy a lot, that's upon based. Okay, so this story is based upon that only. It is only totally fictional. What do you mean by fictional? That it's not real story or true events are not there. The events are based on only of just imagination. Okay, the events are based on the imagination. Now the fun they had is a beautiful fictional narrative. See, it's a experience that how will be your future generation, teachers, and the current experience. Like current a classroom is there, you are sitting with your friends and the teachers are there. They are manual teachers, but in your future the classrooms will not be there. You have to sit at home and the robot will teach you. And see, the human can be tired, but the robot can't be tired. It will make you full day engaged with your books. Okay? So, think yourself, who is the best? So, there are two main characters in the story. One is Margie and one is Tommy. Okay, these two are the two children. One is representing the old age and one is representing the current age, or you can say the future age. Okay, the two children are not from present time. The current situation are not. They are children of generations yet to come. ये अभी फ्यूचर आने वाले जनरेशन के हैं जो अभी आनी है. ओके, दे आर फॉर फ्यूचर जनरेशन. दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्यूचर जनरेशन को. ओके, दे बोथ आर यंग एंड ऑफ एन इम्प्रेशनेबल एज. ठीक है, दोनों जो किड्स हैं वो यंग है. ठीक है, दे आर नॉट ऑफ ओल्ड एज. ओके, एक्सपीरियंस्ड नहीं हुए, लेकिन वो अपने ओल्ड बुक्स एंड ओल्ड वेज ऑफ टीचिंग को डिस्कस करते हैं. ओके, सो दे डिस्कस अबाउट ओल्ड बुक्स एंड ओल्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड स्टडिंग, कि हाउ द स्टडी वॉज देयर. जैसे द लिटिल गर्ल जो ओल्ड स्कूल को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि वाई शी प्रेफर, बिकॉज शी जो आज के न्यू स्कूल है उसके अंदर आप फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं सकते. ओके, so that's why she loved the old ways of teaching, that where mechanical teachers are there. They have some feelings and emotions. See, we human beings we are in habit of sharing our feelings with someone, and for you the friends are the best part of it, whom you share each part of feelings. So here she loved that environment, old environment, where you sit at one place with your friends and mechanical teachers are there. They have the feelings, the teachers have the feelings and the sentiments, but robots are not having any feelings. So she was hating
the new technique of teaching. Okay, she loved the old school in place of the new school, where mechanical teacher, that means your manual teacher are there, not man made, but the human beings are there. Okay, and so through this chapter you will also able to come to know about your future generation, how it will be, and that's a very long time left. Okay, so how will be your future kids? So in this story two main characters are there. Okay, and see, like your parents, the same way Margie mother is also very strict for her teaching. She want her 100% result. Like your parents want your best result, the same way her parent also want her best result. So Margie mother, she want her 100% result. Okay, and okay, but Margie used to love the old teaching. Okay, so both the children are discussing the merits and demerits of different age. Okay, that means your future age and your current age prevailing. सी आपने ऑनलाइन स्टडी की है तो आपने एक तरीके से आपने फ्यूचर एज को इमेजिन कर लिया, राइट? सो नाउ Isaac Asimov does not talk about other aspects of future age. Okay, this allows more room for discussion as to what true age of technology would be. See, and the story moves लाइक डैट इन अ साइंस फिक्शन, कि वो आपको एक तरीके से, बेटा देखो रोबोटिक स्टडी क्या है, ये साइंस डेवलपमेंट है ना, साइंस न्यू टेक्नोलॉजी. सो फिक्शन, वाई इट इज सेल्ड एज फिक्शन? बिकॉज सी द स्टोरी इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. इट्स नॉट द करंट और प्रिवेलिंग में नहीं है आपकी, ठीक है, ट्रू इवेंट्स नहीं है. एंड अफेक्शन बेस्ड है कि ठीक है, दो बच्चे अपने आपस में जो फीलिंग शेयर करते हैं, सो दैट इज ऑन द अफेक्शन बेस्ड. नाउ यू कैन नोट डाउन द मीनिंग्स इफ यू वांट. एटिक, व्हाट इज एटिक? जो एक ओल्ड में या आपके घर पे भी होगा, एक छोटा सा स्टोर रूम होगा जो आपके, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल रखते हैं. ओके, और अनयूज्ड मटेरियल आपके रखते हैं. सो दैट एटिक इज योर स्टोर रूम. फिक्शन जो आपकी बनावटी होती है, मेड अप थॉट्स, इमेजिनेशन. ओके, एंड नरेटिव, नरेटिव डेट मीन्स डिटेल स्टडी. ठीक है, उन्हीं इवेंट्स को हमने एक फुल डिटेल स्टडी किया है. मेरिट, योर गुड पॉइंट्स. डीमेरिट, योर ड्रॉबैक्स. ओके, एंड मैल फंक्शन, जब आपकी मशीन एक अलग हटके जो उसका पर्पस है उससे बियॉन्ड वर्क करे. ओके, सो क्रिंकल, इफ़ यू सी योर ओल्ड पेपर जो होते हैं, ठीक है, वो अगर आप क्रश करते हो तो वो एक साउंड बनाते हैं. डैट, तो आप टचिंग टाइम पे जब उस क्रश करते हो, जो टच करते हो तो जो फील करते हो, डैट इट इज. ओके, so let us start. till here it is clear to you कि आपको इस स्टोरी के अंदर आपकी जो अभी करंट टीचिंग है और जो आने वाली टीचिंग है, ये दोनों आपस में डिस्कस किए. ओके, सो ना जो इसाक असिमोव है ये प्रेजेंट जनरेशन का है, ठीक है, और ही पॉइंट आउट द व्यू ऑफ फ्यूचर चिल्ड्रन, कि आगे फ्यूचर के जो चिल्ड्रन हैं वो कैसा फील करते होंगे. एंड दिस स्टोरी इज टेकिंग प्लेस इन ईयर 2157, जो अभी आने में बहुत टाइम है, 21st. ओके, सो मार्गी, टॉमी, दिस टू किड्स आर देयर. ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं उनकी जो फ्यूचर एज जो चल रही है उस एज को, और जो पास्ट में हो चुका.
ठीक है। टॉमी इज एल्डर ऑफ द टू, ठीक है, टॉमी बड़ा है। एंड ही, उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज भी है, ठीक है, अपनी छोटे दोस्तों से कहीं ज़्यादा उसमें नॉलेज भी है। मार्गी एक नॉर्मल गर्ल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है। एंड शी वॉन्टेड टू नो ईच एंड एवरी पार्ट। क्यूरियोसिटी डेट मीन्स वो हर एक चीज़ को जानने की इच्छा रखती है, और वो आज की लड़कियों में सी है, ठीक है। एंड शी नो वेरी वेल कि टॉमी ने जो है, जो हम आज जैसे पढ़ रहे हैं टीचर से, वैसे वो पढ़ चुका है, तो एशियन टाइम में पढ़ चुका है वो। नाउ सी, सो द लिटल गर्ल्स जो है वो चाहती है कि वैसा ही पढ़े, ठीक है, एक वैसे ही टीचर से पढ़े जैसे वो टॉमी पढ़ चुका है, ठीक है, उसमें वही क्यूरियोसिटी है। ओके, सो नाउ सी, अब स्टोरी में कब सबसे ज़्यादा है, जब मार्गी दो एजेस को कंपेयर करती है। मार्गी है बेटा, वो फ्यूचर जनरेशन से पढ़ रही है, एक रोबोट से पढ़ रही है जो कभी टायर नहीं होता उसको पढ़ाते समय, और वो फुल डे उसको होमवर्क ही होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। तो मार्गी है दोनों एज को कंपेयर करती है। ओके, सो शी कंपेयर्स द बोथ द टाइम। ओके, एंड सी, तो जो मार्गी है बेटा, जो ये अपनी डायरी लिखता होता है टॉमी, उससे कहीं ज़्यादा वो उसको जान लेती है, ठीक है। और एक्चुअली उसका ब्रदर उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, उसके पास नॉलेज भी ज़्यादा है, उसके ब्रदर के पास नॉलेज भी ज़्यादा है, प्लस उसका क्लोज फ्रेंड भी है जिससे वो अपनी हर एक फीलिंग शेयर करती है, ठीक है। और जो इसाक के थ्रू यहाँ पे इस स्टोरी में एक साइंस टच दिया हुआ है, ठीक है। ये कभी ये देखो, ये प्रूव करना चाहता है कि जो रोबोट्स होते हैं उनमें फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन ह्यूमन बींग्स में फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। और डिफरेंट एज की एक डिफरेंट फीलिंग होती है। जैसे आपकी बेटा, यू कैन से, अगर आपके हाउस में 3 जनरेशन है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी और आप भी हो, तो तीनों जनरेशन्स की अलग अलग फीलिंग्स होंगी, है ना। सो दिस यू कैन दे से द सेम वे, आप इसमें यही दिखाया है कि डिफरेंट एज की, और कुछ होती है जो हम तीनों में ही कॉमन होती है, ठीक है। तो मार्गी के थ्रू बताया गया है कि स्टडी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, लेकिन प्ले भी उतना ही, खेलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मार्गी हेट करती है अपने रोबोट टीचर को, क्योंकि वो कहती है कि वो कभी थकता ही नहीं है, वो तो सिर्फ मुझसे काम कराना ही जानता है। He never gets tired and whole time he make me busy to do keep on work and work and work and work, ठीक है। And Margie mother, she wants her best result, ठीक है। तो मार्गी जो है वो एक ड्रीम करती है उसका, जो आप करंट वे में पढ़ रहे हो, कि एक रियल टीचर होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठने चाहिए, ठीक है। शी वॉन्ट टू सिट, शी डोंट वॉन्ट टू सिट अलोन, she hates sitting alone, she want to sit with friends, and she want a person, a human teacher who has some personal feelings, ठीक है। जबकि मार्गी की मदर बहुत स्ट्रिक्ट है उसके स्टडी टाइम को लेके, एंड शी डिड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू मिस द क्लासेस इवन अ सिंगल क्लास, या ज़रा सा भी अटेंशन नहीं दे, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। जबकि मार्गी है वो हेट करती है पढ़ने को, लाइक यू ऑल्सो हेट स्टडी, और वो चाहती है कि उसका जो कंप्यूटर टीचर है, जैसे आपको लगता है ना कि कुछ ना कुछ टीचर को हो जाना चाहिए कि ताकि छुट्टियां हो जाए, तो वैसे ही है, ये भी हेट स्टडी करता है, ठीक है। इसीलिए सो ना हियर, तो जैसे एक रोबोट टीचर जैसे उसे पढ़ाता है, उसमें ज़रा सा डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो जो उसकी मदर है वो फटाफट उसे रिपेयर कराती है कि नहीं, बच्चों का जो टीचिंग का है वो छूटना नहीं चाहिए,
ठीक है, तो वो उसे फटाफट रिपेयर करा देती है। ओके, सो जो पहले की क्लासेस दिखाई है या करंट क्लासेस जो आप अभी कर रहे हो वो कर रहे हो कि लाइवली क्लासेस है। ठीक है, लाइवली इन द सेंस वहाँ पे इमोशंस है, फीलिंग्स है, ह्यूमनिटी है। ठीक है, जबकि जो आप फ्यूचर वाली है उसमें कुछ भी इमोशंस फीलिंग्स नहीं है, वो लाइवली क्लासेस नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों एजेस का कंपैरिजन किया गया है इस होल स्टोरी में। ठीक है, ओके, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू यू। सो फर्दर वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स।